Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My friends, मेरे मित्रों, God wants to pour His joy in your heart today. आज परमेश्वर अपने आनंद को आपके हृदयों में उंडेलना चाहते हैं. Till now have you been crying? अभी तक आप बस रोते रहे हैं. Till now have you been broken hearted and had no hope? अभी तक आपका हृदय टूटा हुआ था और आपको कोई आशा नहीं दिख रही थी. Don't be afraid. कदापि न डरें. The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी ताकत है. God is going to pour His joy into you. परमेश्वर अपना आनंद जो है आपके अंदर उंडेलेंगे. You just rejoice in the Holy Spirit and God's blessings will just keep pouring along with that joy into your life and into your family. आप बस आत्मा में आनंदित होते रहें और परमेश्वर का आनंद और उसकी सामर्थ आपके जीवन में उमड़ता रहेगा. Jesus has said, यीशु ने कहा है, He that honors me, I will honor. जो मेरा आदर करेगा मैं उसे आदर करूंगा. When you praise God with joy, you're honoring God. जब आप आनंद के साथ ईश्वर की स्तुति करते हैं, आप उसको आदर देते हैं And God will honor you. और ईश्वर आपको आदर देगा. Every obstacle shall be broken today as the joy of the Holy Spirit fills you. जब आज पवित्र आत्मा का आनंद आप में भर जाएगा, हर एक बाधा जो है तोड़ी जाएगी. God is ready to build your home, परमेश्वर आपके घर को बनाने के लिए तैयार है. give you a beautiful family life, वो आपको एक सुंदर पारिवारिक जीवन देगा and to provide for your family. और आपके परिवार की आवश्यकताएं पूरी करेगा. Don't be afraid. कदापि न डरें. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and I healed your disease. I am the Lord your healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your word and it healed my disease. You are the Lord my healer. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and it healed your disease. I am the Lord your healer. आइए अब हम भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा परमेश्वर के चंगाई देने वाले प्रेम के विषय में संदेश के एक भाग को सुनेंगे Jesus loves you. जो उन्होंने अहमदनगर प्रार्थना महोत्सव में दिया था His wounded hands will come and heal you tonight. और जो अनेकों के जीवनों में आशीष का कारण बना. You can be healed tonight. Today we are going to meditate on how God loves to heal His people. आज हम इस पर मनन करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करना कितना पसंद करते हैं. How God loves to heal His children. ईश्वर को कितना प्रिय है अपने बच्चों को चंगा करना. Every one of us are His children. हम में से हर एक उसकी संतान है. Let not your heart be troubled.
आपका हृदय व्याकुल ना हो। When Jesus came into the world, जब यीशु इस संसार में आए, there was a man who was suffering with paralysis who was carried to Jesus. एक व्यक्ति जिसे कि लकवा लगा था यीशु के पास लाया गया। When Jesus saw him, जब यीशु ने उसे देखा, he knew that that sickness had come to him because of his sin. वो जान गए कि ये बीमारी उसके पापों के कारण उसमें आई है। You know what he did for this paralytic man? और मालूम इस लकवा वाले व्यक्ति के लिए उसने क्या किया? Jesus looked at him यीशु ने उसे देखा and he said, और उसने कहा, Son, बेटे, your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हुए, Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा कर दिए गए। Now you are healed. अब तुम चंगे हो गए हो, Your organs are working normally. तुम्हारे अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। Now अब go back to your house. अपने घर वापस जाओ। Maybe that man, because he was sick, he was thrown in the hospital all the उसकी time. बीमारी के कारण से हो सकता है उस व्यक्ति को हमेशा औषधालय में रखा गया, Maybe he was thrown outside his house उसे घर के बाहर में रखा गया था because he was a paralytic. क्योंकि वो एक लकवाग्रस्त था, Because he was a useless person to the family. क्योंकि परिवार के लिए वो एक बेकाम व्यक्ति था। Maybe the whole family said he is useless. Throw him outside the house. हो सकता है परिवार ने कहा वो तो नालायक बेकार है, उसे बाहर रखो। Or maybe he was going to the hospital all the time and living there. या हो सकता है वो हमेशा जा करके अस्पताल में रहता था। Maybe you are like that. हो सकता है आप ऐसे ही हैं। Maybe people say you are useless and they have thrown you out of their हो life. सकता है लोग कहते हो आप कोई काम के नहीं और आपको बाहर निकाल दिया उनने। One lady cried out to me. एक महिला ने मुझसे कहा, She said, Brother, उसने कहा भाई, after I got married, I was hoping to have a joyous life. विवाह के बाद मैं सोचती थी मेरा जीवन बड़ा आनंदित होगा, But unfortunately, I did not bear children. दुर्भाग्य से मेरे कोई बच्चे नहीं हुए, When I did not bear children, और जब मेरे बच्चे पैदा नहीं हुए, my husband threw me out of the house. मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, And his parents threw me out of the house. उसके माता पिता ने निकाल दिया। And they said, You are a curse to our family. उन्होंने कहा तुम हमारे परिवार के लिए श्राप हो, You have not brought any children to our family. तुमने कोई संतान नहीं दी परिवार में। They did not even test my husband. उन्होंने मेरे पति की जांच तक भी नहीं कराई, But they threw me out, brother. पर मुझे भेज दिया। भाई, I am in the street today. आज मैं सड़कों पर हूँ, I am thrown out. मुझे बाहर फेंक दिया गया, I am thrown out. मुझे बाहर फेंक दिया गया। Maybe you say you are like that. आप खुद को ऐसा कहते होंगे। Have people thrown you out? क्या लोगों ने आपको ठुकरा दिया? Have you people thrown you out of their family? क्या आपके लोगों ने आपको परिवार से निकाला है? Have people thrown you out of your house? क्या लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है? Jesus understand. यीशु समझता है। He told that man, उसने उस व्यक्ति से कहा, Go to your house, my son. अपने घर जाओ मेरे बेटे, Go to your house, my son. बेटे घर जाओ, Go and enjoy your family life. जाओ पारिवारिक जीवन का आनंद लो। That is the heart of God for you. ये है ईश्वर का हृदय आपके लिए। He wants you to enjoy your family life. वो चाहता आप परिवार जीवन का आनंद लें। Enjoy your husband's love. ओ पति के प्रेम का आनंद लें, Enjoy the wife's love. पत्नी के प्रेम का आनंद लें, Enjoy the children's love. बच्चों के प्रेम का आनंद लें। He says, it is enough you have been in the hospital all the वह time. कहता है पर्याप्त समय हुआ अस्पताल में तुम्हारा, Enough you have been in the courts all the time. तुम हमेशा पर्याप्त समय के लिए कोर्ट में रह चुके हो, Enough you have been despised because you don't have a child in your womb. और तुम्हारा पर्याप्त तिरस्कार हो चुका क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। I want you to go back and enjoy your family life. वो चाहता आप परिवार का जाकर आनंद That's लें। the heart of Jesus. यह है यीशु का हृदय, That's the heart of Jesus. यह है यीशु का हृदय। Tonight he is going to bless you with a joyous family life. आज वो आपको एक आनंदमय पारिवारिक जीवन की आशीष देना चाहता Some of you say, है। आप में से कुछ कहते हैं, Brother, भाई we are living as husband and wife, हम पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, but all the time, पर हमेशा for no reason, बिना कारण we both are fighting. हम हमेशा लड़ते रहते हैं। We don't know why we are fighting. हम नहीं जानते हम क्यों लड़ रहे हैं। And some people say, कुछ लोग कहते हैं Oh, we are earning so much, कि हम इतना कमाते हैं, but there is no money sticking in our house. लेकिन हमारे घर में पैसा नहीं ठहरता, And because of that, we are fighting all the time. उसके कारण हम हमेशा लड़ते हैं। Money doesn't stay in the house, घर में पैसा नहीं बचता, so we are fighting all the time. इसलिए हम हमेशा लड़ रहे हैं। Because there is debt and borrowing, there is fighting in the family. कर्ज और उधार के कारण से परिवार में हमेशा झगड़ा है, And we have got separated और हम अलग हो गए हैं because of this financial problem. इस आर्थिक समस्या के कारण। Yes, it is the devil which is separating the family. हाँ, ये शैतान है जो परिवारों को अलग कर रहा है। Devil gets into the families, शैतान घरों में आता है, brings division, विभाजन लाता है, unnecessary suspicion between the husband and the wife. पति पत्नी के बीच बेकारण का शक, For no reason, the husband suspects the wife. बेवजह पति पत्नी पर शक करता है। It is the devil. ये शैतान है, It is the devil. ये शैतान है। For no reason, the wife suspects the husband. बेकारण पत्नी पति पर शक It करती is the devil है, ये शैतान है। separating the families.
परिवार को अलग करता है। For no reason, the parents are suspecting the children, बिना कारण के माता पिता बच्चों पर शक करते हैं and it separates the family. और वो परिवार को विभाजित करता है। One day, एक दिन a girl came back from school, एक लड़की स्कूल से वापस आई and the father called her और पिता ने उसे बुलाया and said, और कहा, 10 rupees is missing in my purse. मेरे पर्स से 10 रुपए गायब है, Tell me whether you have taken it. मुझे बताओ कि तुमने तो नहीं She लिया। said, no, daddy, उसने कहा, नहीं पापा, I did not take it. मैंने उससे नहीं लिया। He said, no, you have only taken it. उसने कहा, नहीं तुमने ही लिया है, You have only taken it. केवल तुम ही ने लिया है। Went on saying that. और वैसे ही कहता रहा। Finally, he hit her, आखिर में उसने उसे मारा and his anger was so great. और उसका क्रोध इतना भयंकर था, He poured kerosene and he burnt her. उसने मिट्टी तेल डालकर उसे जला His दिया, own daughter. अपनी ही बेटी को। This came in the newspapers. ये समाचार पत्र में छपा। It is the devil ये शैतान है bringing suspicion between the husband and the wife, जो पति पत्नी के बीच में शक को ले आता है, parents and the children. माता पिता और बच्चों के बीच में। And again, the devil steals. और शैतान चुराता है। The Bible says in John 10:10, बाइबल बताती है हमें यूहन्ना 10:10 में, the devil steals, शैतान चुराता the है, devil kills, वो मारता है the devil destroys. और नाश करता When he है। gets into a family, जब वो परिवारों में आता he है brings financial problem, तो वो आर्थिक समस्या लाता है, divides the home. परिवारों में विभाजन ले आता है। They cannot enjoy their family life. वे पारिवारिक जीवन का आनंद नहीं ले They सकते, are in agony. वे दुख में होते They suffer और कष्ट उठाते हैं and they separate. और विभाजित होते हैं। Every day I get thousands of letters. प्रतिदिन मुझे हजारों पत्र मिलते हैं, Different stories from the people. लोगों से अलग अलग कहानियां। They say my wife has run away. एक कहता मेरी पत्नी भाग My गई, husband has chased me away. मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया My है, parents have chased me away. मेरे माता पिता ने मुझे भगा दिया। Yes, it's the devil who separates the people in the family. हाँ, ये शैतान है जो लोगों को परिवार में विभाजित But करता है। Jesus told this man, पर यीशु ने इस व्यक्ति से कहा, it is enough you have been separated from your family. पर्याप्त हुआ तेरा परिवार से तेरा विभाजन, Go back to your house. वापस अपने घर जा, Go back and enjoy your family life. जाकर अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले। That's the love of God. यह है ईश्वर का प्रेम। And I know he would have driven that devil out of their home. और मैं जानता हूं उनके परिवार से उसने दुष्ट आत्मा को भगा दिया होगा। Many people ask me, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, brother, in my home, I think somebody has done witchcraft. मैं सोचता हूँ भाई किसी ने मेरे घर में जादू टोना किया है, That's why nothing is prospering in our home. इसलिए हमारे घर में कोई भी चीज में सफलता नहीं मिल रही है। Please tell me whether I should change my home. मुझे बताएं क्या मुझे अपना घर बदलना Go चाहिए, to another house. दूसरे घर में जाना If you चाहिए। go to another house, the devil also will come there. अगर आप दूसरे घर में जाएंगे तो शैतान वहां भी He आएगा। knows all the addresses. वह हर एक पते को जानता है। But that is not the solution. ये इसका हल नहीं है। Changing the house is not the solution. घर का बदलना हल नहीं, Changing the job is not the solution. अपने नौकरी बदलना हल नहीं है, Changing the wife is not the solution. पत्नी को बदलना कोई हल नहीं है। Some husbands write to me and ask, can I change my wife? Will I get a child now? कई लोग पूछते हैं अगर मैं अपनी पत्नी बदल दूं तो क्या मुझे संतान मिलेगी? That is not the solution. यह आपका कोई हल नहीं है। Bringing Jesus into your home is the only solution. एकमात्र हल है यीशु को अपने घर में लाना। Hallelujah! हालेलुया! He is the only solution. वही एकमात्र हल है हमारा। When the Lord comes, there is liberty. जहाँ प्रभु आता है तो वहाँ आजादी आती है। At the name of Jesus, you will cast out devil. यीशु के नाम में आप दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, Jesus is going to come into your house. यीशु आपके घर में आने वाले हैं He's going to send you back और आपको वापस भेजने वाले and हैं build your family. और आपके परिवार को He बनाने वाले हैं। himself is coming into your वो house. स्वयं आपके घरों में आ रहे हैं। Today, आज tell him, Lord, come into my family. उससे कहें प्रभु मेरे घर में आए, Not only into me, न केवल मेरे अंदर but into my family. पर मेरे परिवार में आए। Zephaniah 3:19 says, सपन्या 3:19 कहता है, in the same land where you went through shame, God will give you praise and honor. जिस जगह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ईश्वर कहता है वह आपको वहीं इज्जत और आदर देगा। In the same house, उसी घर में, in the same house, उसी घर में, in the same family, उसी परिवार में where you went through shame, जहां आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, God will give you praise and honor. परमेश्वर आपको प्रशंसा और आदर देगा। Your own relatives will come back and honor you. आपके परिवार वाले आपको आदर देंगे। You know how? मालूम कैसे? If you read Zephaniah 3:9, अगर आप सपन्या 3:9 को पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है God will give everyone in your family the same language. परमेश्वर कहता है कि वह आपके परिवार के हर एक जन को एक ही भाषा देगा, The pure language. एक पवित्र The भाषा, pure language. निर्मल भाषा। All of you will speak the language of God.
हर एक ईश्वर की भाषा में बात करेंगे। Nobody in your family will speak the language of the world or language of the devil. कोई भी संसार या फिर शैतान की भाषा में बात नहीं करेगा आपके घर Today में। God is going to change the language of every one of you. आज परमेश्वर आप में से हर एक की भाषाओं को बदलना चाहता है। That's why Jesus said इसलिए यीशु ने कहा in Mark 16:17, मरकुस 16:17 में, you will speak with new tongues. तुम नई भाषाओं में बोलोगे। You will not speak the language of men, तुम मनुष्य की भाषा में नहीं बोलोगे। fighting language, काटने वाली भाषा, suspicion language, शंका की भाषा, language saying God has forsaken me, यह कहना कि ईश्वर ने मुझे भुला दिया। the language of plundering from other people, jealousy over the people. लोगों के लिए जलन को लाने वाली भाषा, That is all men's language यह मनुष्य की भाषा है or women's language. या स्त्री की But भाषा है। God says you will speak my language. ईश्वर कहता तुम मेरी भाषा में बात I'll करोगे, give you new tongues. मैं तुम्हें नई जुबान दूंगा। All of you will speak God's language. आप में से हर एक ईश्वर की भाषा में बोलेंगे। That's a heavenly language. यह स्वर्गीय भाषा है And that language will unite everybody in the family. और वह भाषा परिवार में हर एक को एक करेगी। And you will prophesy God's will, God's love, God's plan to each other in the family. और आप एक दूसरे को परिवार में परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की योजना के बारे में बताएंगे। That's what the Bible says in Acts 2:17. यही तो प्रेरितों 2:17 में बाइबल में लिखा गया है In the last days, कि अंत के दिनों में I will pour my Holy Spirit upon all flesh. मैं अपनी पवित्र आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा। All the members of the family will receive the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा को परिवार के हर एक जन पाएंगे And you will all speak the language of God. और आप में से हर एक परमेश्वर की भाषा You will बोलेंगे, speak with new tongues. अन्य भाषाओं में बोलेंगे। God's language. परमेश्वर की भाषा, Love, प्रेम, love, प्रेम, love, प्रेम, love. You प्रेम। will have concern over other people. औरों के लिए आपके मन में सहानुभूति And होगी you will speak God's plan for each other. और एक दूसरे के लिए आप ईश्वर की योजना को बताएंगे। Don't be afraid. आप ना डरें। Tonight it is God's mind to bless every family. आज रात परमेश्वर की मंशा हर एक परिवार को आशीष दे। He wants to heal every division in the वो family. परिवार के हर एक विभाजन को ठीक करना चाहता है। He wants to heal every financial problem in the family. परिवार के हर एक आर्थिक कठिनाई को ठीक करना चाहता है। He wants to drive out the devil from every family. हर एक परिवार से दुष्ट आत्मा को दूर भगाना चाहता है। Jesus wants to drive out the devils from every हर family. एक परिवार से दुष्ट आत्मा को यीशु दूर भगाना चाहता है। Only the Lord. केवल प्रभु ही, Only the Lord केवल प्रभु in your family. आपके परिवार में हो। How many of you want Jesus to come into your family? कितने चाहते हैं यीशु आपके परिवारों में आज आ जाए। Show your hands to Jesus. यीशु को अपने हाथ दिखाएं, Tell him, bless our family, Lord. कहें प्रभु हमारे परिवार को आशीष दे। We want joy and prosperity in our family, हम Lord. अपने परिवार में आनंद और समृद्धि चाहते प्रभु। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। My friend, I'm ready to pray for you right now. मेरे मित्र, मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, open the windows of heaven आप स्वर्ग की झरोखों को खोलें and pour down a blessing upon this family. और इस परिवार के ऊपर में अपनी आशीष को उंडेलें Give them a blessing which they cannot hold, Lord. और ऐसी आशीष दें जिसे वे संभाल ना पाए प्रभु जी। So many blessings. इतनी ज्यादा आशीष है। Prosper them. उन्नत करें उन्हें, Prosper them. आप उन्हें उन्नति दें। And Father, you have said, I will fill your borders of your home with peace. और आपने कहा प्रभु जी, मैं तुम्हारे घर के चारों दीवारों को आज शांति से भरूंगा। I will satisfy you with the finest wheat. मैं तुम्हें सर्वोत्तम गेहूं से तृप्त करूंगा। Today, whatever the devil has stolen from their family life, I command it to come back by the power of the Holy Spirit into their lives, Lord. जो कुछ भी उनके पारिवारिक जीवन से दुष्ट ने उसे चुराया है, मैं आज्ञा देता हूं कि उनके जीवन में वापस आ जाए प्रभु। Let it come back. वो वापस आ जाए, Let the blessings come back. आशीषें वापस आ जाए, Let your family life come back with joy. आनंद के साथ पारिवारिक जीवन वापस लौट आए। They have lost a child, give them a child again. उन्हें अगर बच्चे खोए प्रभु ने वापस एक बच्चा दे। If they have seen failure in their family, give them success after success, Lord. अगर परिवार में सफलता आई एक के बाद एक, उन्हें सफलताएं दे प्रभु If जी। they have seen only shame, Lord, give them praise and honor in double measure from now on. अगर उन्हें शर्मसार ही देखा है प्रभु जी, तो अब उनके जीवन में आप दुगने हिस्से से इज्जत लाएं। Give them promotion. आप उन्हें उन्नति दें Give them the transfer they need. और आवश्यक ट्रांसफर्स दें Give the children very high marks. और बच्चों को आप उच्च अंक दें। Open the door for them to get the visas and the orders which they need. और उनके लिए दरवाजे खोलें कि जो आवश्यक वीसा और आवश्यकताएं वो पूरी की जाएं। Give them the
Lord orders for their business and the payments to come on time. उनके व्यवसाय में आप उनको नए नए ऑर्डर दें और प्रभु जी उनके जो भुगतान है समय पर मिल सके। Let the blessings come upon them right now in Jesus' name. इस समय यीशु के नाम में आशीष उनके ऊपर आ जाए। Let their family be blessed. उनका परिवार आशीषित हो। Tintu, God touches you right now. परमेश्वर आपको अभी छू रहे हैं। You have a problem in the back. आपके कमर में कोई तकलीफ है You're not able to do any work. और आप कुछ काम नहीं कर पाते। God heals you right now. परमेश्वर आपको अभी चंगा कर रहा है। Krishna, you have an initial M. आपका जो इनिशियल है वो M है। God heals you right now. परमेश्वर आपको अभी चंगा कर रहे हैं। Rise up and walk. उठकर चलने लगे। And may God bless your business also. परमेश्वर आपके व्यवसाय को भी आशीष दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। There are some servants of God who are praying right now. कुछ परमेश्वर के सेवक हैं जो समय प्रार्थना में हैं। Lord, strengthen me. ओ प्रभु जी मेरी सहायता करें। I want to be a blessing for your people. मैं आपके लोगों के लिए एक आशीष बनना चाहता हूँ। My friend, God is breaking open the closed doors and giving you a successful ministry. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल रहे हैं और आपको एक सफल सेवकाई दे रहे हैं। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं। Bless this home. इस परिवार को आशीष Let दें। there be peace in their family. उनके परिवारों में शांति रहे Great abundance in their home. और उनके घर में महान संपन्नता आए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen आमीन। and amen. आमीन। God bless you, my friend. ईश्वर आपको आशीष दे मेरे मित्र। मेरा नाम लता है, मैं आवड़ी से आ रही हूँ। पिछले वर्ष क्या हुआ कि मैं बहुत सीरियस हो गई थी। रात 12 बजे मेरी सांस फूलने लग गई थी। एम्बुलेंस में मुझे लेकर गए और मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में ले जाने के बाद सभी डॉक्टरों ने चेकअप करके बोला कि ये माँ अपनी अंतिम मुकाम में है, अब ये नहीं रहेंगी, अब ये माँ कभी भी मर सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जीएच भेज दिया। जीएच में भी दिखाने के बाद उन लोगों ने बोला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है जब पता चला तो मुझे अडयार अस्पताल ले आए और मुझे वहाँ भर्ती कर दिया। वहाँ मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। रात 12 बजे मेरी सांस फूल जाती थी। एक रात 12 बजे मेरी सांस फूलने लग गई। उस रात के समय में मैं अपने कब्र तक पहुँच गई। उस रात मैंने सोते समय सपनों में देखा कि सब जगह गड्ढे गड्ढे खोद रखे हैं। उन एक एक गड्ढों में शैतान एक एक करके खड़े हो गए। शैतान उनमें खड़े होकर बोले, आ अपने लिए जगह बना ले वरना जगह नहीं मिलेगी। मैं नहीं आ रही बोलकर मेरे लिए हाल ही में जो कब्र खुदी हुई थी मैंने उसे खुद देखा और मैं उस कब्र तक गई। उस रात जब मैंने अपनी कब्र को देखा तो उसे देखकर मैं बहुत डर गई। सब डॉक्टरों ने बस यही कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर ये अंतिम स्थिति है और अब नहीं मालूम आगे क्या होगा। उनकी ये बात सुनकर मैं चुपचाप एक ऑटो पकड़कर यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन चली गई। वहाँ मुझे एक बहन मिली। मैंने उनसे कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं अस्पताल से भागकर आई हूँ। उस बहन ने कहा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, निश्चय ईश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना रखी है, वो ज़रूर आपको छुटकारा देगा, आपको कुछ भी नहीं होगा, निश्चय ही परमेश्वर आपके साथ है और आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शांति के साथ लौटिए, आप प्रार्थना के साथ जाइए, आपको छुटकारा मिलेगा। मैंने निश्चय किया कि मैं जीवन भर जब तक मुझसे होगा मैं प्रार्थना करती रहूंगी। उसी विश्वास के साथ मैं वापस अस्पताल लौटी और जाकर अपने खाट पर लेट गई। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से मेरा पूरा चेकअप किया और उन्होंने कहा मुझे कुछ बदलाव दिख रहा है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। और इतना ही नहीं, आपकी सारी रिपोर्ट जो हैं सारी की सारी रिपोर्ट बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर ने ऐसा कहा। बाकी सारे मरीज लोग बार बार महीने में 4 बार अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, आईसीयू वार्ड में जाते हैं, नहीं तो अस्पताल जाकर न केवल दवाइयाँ लेकिन उसके साथ के दुष्परिणामों को भी अपने साथ लेके जाते हैं और तकलीफ़ें पाते हैं। पर मैं तो गर्व के साथ यहाँ से जा रही हूँ, ईश्वर आगे और मैं उसके पीछे अपना रिपोर्ट लेकर जा रही हूँ। डॉक्टरों ने मेरी सब जगह अच्छे से जांच की और देख रहे थे कि मेरा कोई अंग खराब तो नहीं हो गया है। डॉक्टर ने सब कुछ बहुत अच्छे से जांचा और देखकर कहा सभी रिजल्ट अच्छे हैं। ये सब उन प्रार्थना योद्धाओं के कारण मुमकिन हुआ है जिन्होंने मेरे लिए आंसू बहा पूरे बोझ के साथ प्रार्थना की। बहुत से आशीर्वाद, 1-2 नहीं बहुत से आशीर्वाद मिले हैं। मैं तो कुछ ही बोल पा रही हूँ। आज मुझे यीशु बुलाता है
एक बड़े बरगद की पेड़ की तरह लग रहा है, क्योंकि ये मेरे जैसे गरीब, डरे हुए, कमज़ोर और ऐसे लोगों के लिए जिनका कोई नहीं आंसू बहा हमारी शांति के लिए, हमारी परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम आंसू भरे आंखों के साथ यहाँ आते हैं तो यहाँ प्रार्थना योद्धा हमारे लिए संतावना और प्रेम के साथ प्रार्थना करते हैं और उनकी बातें हमें संतावना प्रदान करती हैं। उनकी प्रार्थनाओं का असर जल्द ही होने लगता है। यहाँ आकर अगर हम प्रार्थना निवेदन डालें और प्रार्थना करें, तब हम यहाँ से पूरे विश्वास के साथ जा सकते हैं कि जय हमारी ही होगी।